हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज हम एक्सरसाइज 3D देखेंगे। 3D में हमने 2 ही क्वेश्चन है, तो हम उसके बाद 3E के भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 3D में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इट इज गिविंग टू यू अ बॉय pushes a wall with a force of 10 newtons towards east. What force is exerted by the wall on the boy? So exercise 3D is about the Newton's third law of motion, and Newton's third law of motion says that every action has its equal and opposite reaction. जो भी एक्शन होगा उसकी जस्ट इक्वल एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन सेम रिएक्शन होगा। तो जब आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो 10 न्यूटन्स टूवर्ड्स ईस्ट, तो जब 10 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट वॉल पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो जो वॉल होगी वो जस्ट ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेगी सेम मैग्नीट्यूड का बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 न्यूटन्स टूवर्ड्स द वेस्ट। ओनली ये आपको लिखना है। नेक्स्ट आपको रीज़न नहीं बोला है, अगर रीज़न बोलेगा तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दैट इज व्हाई इफ द बॉय विल अप्लाई द 10 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स द वॉल विल आल्सो अप्लाई 10 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स द बॉय, बिकॉज द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉय इज इन द ईस्ट डायरेक्शन, so the force applied by the wall will be in the west direction. Okay. Second question is given in figure. A block of weight 15 Newton is hanging from a rigid support by a string. Here you can see this is a block. In that block, the weight of block is 15 Newton, and this block is attached by a string to a rigid support. Now you can see what force is exerted by block on the string. So because of the block there will be a force on string, and because of string there will be force on block. So we need to say which two forces are there. So first force you can see the force exerted by the block on the string will be 15 Newton. And 15 Newton in which direction? This direction will be in the downward direction, and this is the weight of the block. Because of the weight of block, this block will apply some force on this string. Now the second question is string on the block. Which force string will apply on the block? So the force exerted by the string on the block will be 15 Newton. In which direction? Upward direction. And because of the tension generated on string, because of the tension, here it is a rigid support and there is also a heavy block. So the string wants to pull it in the upward direction and the block wants to pull it in the downward direction, and because of that it is in the neutral position. Okay. So we need to only say that which force is applied and in which direction. So 15 Newton force is applied by the block in the downward direction because of the weight of the block, and 15 Newton is on the string because of the tension force on string, and it will be in the upward direction. Okay. So these two were the questions of exercise 3D. Now we will move forward to exercise 3E. In 3E there are number of questions, so now we will start solving them. So you can see first question of exercise 3E is the force of attraction between two bodies at a certain separation is 10 Newton. ठीक है, force is 10 Newton. What will be the force of attraction between them if the separation is reduced to half? So you know that the formula for force of attraction is F is equal to G capital M small m by R or D, anything you can take. Now the value of force is given to you. Now it is said that if you reduce the distance by half, so now R is equal to R by 2. So the new force you can take is F1. G is gravitational constant, it cannot be changed. M and M is the mass of these two bodies, this will also not change, only the separation between them is changing. ठीक है. So you will not take R square and 2 को separately, you need to take R by 2 whole square. So it will be G
by r square by 4. ठीक है. Now what we will do, we will compare these two forces. So F by F1 is equal to G m by r square upon G m by r square by 4. ठीक है. अब देखो जी m कैंसिल इससे, आर स्क्वायर कैंसिल इससे, तो f बाई F1 इज इक्वल टू क्या बचा, इस पूरे की जगह 1 बचा, इस पूरे की जगह 1 बचा और यहाँ पे आ गया 4. ठीक है. तो अब ये क्या बन गया ऐसा, और हम क्या जानते हैं 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू 4 बाई 3. तो ये क्या हो जाएगा, f बाई F1 इज इक्वल टू 1 बाई, बस यहीं पे हमको थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं. ठीक है. तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 4f, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू फोर्स जो होगा वो ओल्ड फोर्स का 4 टाइम हो जाएगा. ओल्ड फोर्स का 10 न्यूटन, तो न्यू फोर्स हो जाएगा 40 न्यूटन. ये क्वेश्चन पूरा सही बनेगा, लास्ट में सिर्फ यहाँ पे आके गड़बड़ी होगी. तो यहाँ पे बस आप ध्यान रखना कि जब डिस्टेंस रिड्यूस होता है, इन दैट कंडीशन द फोर्स यूज टू इंक्रीज, एंड व्हेन द डिस्टेंस इंक्रीज द फोर्स विल डिक्रीज. सो न्यू फोर्स विल ऑलवेज बी मोर देन द ओल्ड फोर्स. ओके. So this question is completed. I think it is clear. Now we will move forward to question number 2. In question number 2 it is given, write the approximate weight of body of mass 5 kg. So mass is 5 kg. We need to say what is weight. What assumption have you made? Here we need to know what assumption we will make. So W is equal to M into G. Now the value of G, actual value is 9.8, but here we need to say the approximate value. So for the approximate value, we will take the value of G is 10. So W is equal to 15 Newton. And what assumption we did make? So we took the value of gravitational acceleration as 10 meter per second square. Okay. Now the question number 3. Calculate the weight of body of mass 10 kg. So M is equal to 10 kg. We need to calculate into first kgf and the second in Newton. And we need to take G is equal to 9.8 meter per second square. ठीक है. G की वैल्यू लेनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सॉल्व करना है. तो आपको वेट इन kgf निकालना है. तो वेट इन जो kgf होता है वो होता है m. ठीक है. तो कितना हो जाएगा 10 kgf हो जाएगा आपका वेट इन kgf. ये चीज़ समझ आ रही है. वेट इन kgf जो होता है वो क्या होता है, m की जो वैल्यू होती है वही 1 किलोग्राम, तो वो 10 kgf ही हो जाएगा. अब हमको निकालना है न्यूटन. तो वेट इन न्यूटन जो होता है वो होता है, वेट इन न्यूटन होता है आपका m इंटू जी. तो m की वैल्यू कितनी है 10 और g की वैल्यू कितनी है 9.8. तो ये कितना हो जाएगा 98 न्यूटन. ठीक है. तो ये दो वैल्यूज निकल गई हमारी. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्टेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स of gravity acting on a body of mass 5 kg and take g is equal to 9.8 meter per second square. तो m दिया है आपको 5 kg, g दिया है आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपको निकालना है फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो फोर्स की वैल्यू होती है m इंटू जी. तो m है 5, g है 9.8. तो 5 इंटू 9.8 कितना होता है 49. और यूनिट होती है न्यूटन. अब आपको डायरेक्शन बताना है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो डाउनवर्ड पास 49 न्यूटन एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स.
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा काम झाम नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, द वेट ऑफ बॉडी इज 2 न्यूटन, व्हाट इज द मास? सो वेट इज इक्वल टू 2 न्यूटन, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास की वैल्यू फाइंड आउट कर। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन जी, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 2, जी की वैल्यू कितनी है 10, 2/10 कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा 0.2 और ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। तो दिस इज आवर आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ इज 98 न्यूटन। तो डब्ल्यू ई ले लो क्योंकि अर्थ में है, ठीक है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या बोला, व्हाट विल बी द मास एंड वेट ऑन द मून वेयर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मास निकालते हैं और वेट ऑन मून निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, मास ऑन अर्थ निकालना पड़ेगा। तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है, तो एम इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जी हो जाएगा। डब्ल्यू है 98 और जी है 9.8, तो ये कितना आ जाएगा 10 क्या kg। अब मास इज क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी बॉडी। तो अमाउंट ऑफ मैटर आप यहाँ रखो, मून पे रखो, सन पे रखो, जुपिटर पे रखो, प्लूटो पे रखो, एनी वेट, मास जो होगा वो चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होता है, वेट। तो मास जो अर्थ पे है वही मास मून पे भी होगा, ठीक है। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 10 kg। अब हमको निकालना है वेट ऑन मून, तो m इंटू जी ऑन मून। तो मास कितना है 10 और g की वैल्यू मून पे कितनी है 1.6, तो कितना हो जाएगा 16 न्यूटन। तो वेट ऑन मून कितना हो जाएगा 16 न्यूटन। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 हमको दिया है, अ मैन वेज 600 न्यूटन ऑन अर्थ। वेज मतलब वेट, नॉट मास, ओके। What would be his approximate weight on the moon? Give reason for your answer. So you need to remember that the weight on moon is 1/6 of weight on earth. Okay, 1/6 of weight on earth. That is why what you will write, weight on moon is equal to 1/6 of weight on earth. तो 1/6 of 600, तो कितना हो जाएगा weight on moon 100 न्यूटन। इज इट क्लियर? या तो आप डायरेक्टली ये करो या तो फिर आप डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी से वो निकालो और फिर जी की वैल्यू 1.6 याद रखो, या वो करो, या आप याद रखो कि मून पे जो वेट होता है वो अर्थ पे वेट का 1/6 होता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया हुआ है, what is the force of gravity and the weight of a block 10.5 kg mass, kg is equal to 10 meter per second square। Very simple, मास दिया है 10.5 kg, g is equal to दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको वेट निकालना है, हमको फोर्स निकालना है। w is equal to क्या होता है mg, तो 10.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 105 न्यूटन, और फोर्स इज इक्वल टू भी क्या होते हैं mg, तो 10.5 इंटू 10 क्या हो जाएगा 105 न्यूटन। तो ये दो आंसर हमारा आ गया। बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अब इस एक्सरसाइज में जो हमको दिए हैं क्वेश्चंस वो है 20। तो 8 क्वेश्चंस हमने किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हम देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हमको क्या दिया है, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम हाइट एंड इट रीच द ग्राउंड इन 3 सेकेंड। ठीक है, एक हाइट से ये छोड़ी गई और ये ग्राउंड रीच की कितने में 3 सेकेंड में। इफ g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द हाइट फ्रॉम विच द बॉल इज रिलीज and the velocity with which the ball will strike the ground। ठीक है,
तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमने हाइट h ले ली और वेलोसिटी भी ले ली। अब क्योंकि बॉल यहाँ से छोड़ी गई तो इनिशियल वेलोसिटी जो हो जाएगी 0, u इज इक्वल टू लो के 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे निकालोगे h, तो h इज इक्वल टू क्या होता है, u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u की वैल्यू 0, u की वैल्यू कितनी 1/2, g की वैल्यू 9.8 इंटू टी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, तो 1/2 से यहाँ पे कैंसिल कर दो, 4.9 इंटू 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 स्क्वायर करो तो 4.9 इंटू 9 करेंगे कितना आ जाएगा 9 9 सा 81, 9 4 सा 36 प्लस 8 44, तो 44.1 और यूनिट हो जाएगी मीटर। तो किस हाइट से बॉल छोड़ी गई 44.1 मीटर। अब आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमको फॉर्मूला पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी है आपको पता है, वो तो निकालनी है। u की वैल्यू कितनी है 0 प्लस 2, g की वैल्यू कितनी है 9.8 और h की वैल्यू है 44.1। v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू 44.1, करिए कितना आता है 864.36। अब स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा तो v इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 864.36, तो v की वैल्यू आ जाएगी 29.4 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। आपको सिर्फ वही फॉर्मूला यूज़ करना है, पर वो फॉर्मूला में s की जगह क्या आ जाएगा h और a की जगह क्या आ जाएगा g, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दिया है। 10 नंबर दिया, व्हाट फोर्स इन न्यूटन योर मसल्स नीड टू अप्लाई टू होल्ड अ मास 5 kg इन योर हैंड। तो आप देख रहे हो m की वैल्यू दी हुई है 5 kg, तो कितना फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा और व्हाट एजम्पशन यू टेक। तो सबसे पहले आप देखो कि हम जानते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन, अगर हमको कोई चीज़ है जिसको हमको अपने हाथ में पकड़नी है, ठीक है, तो हम जितना फोर्स उसको पकड़ने के लिए लगाएंगे वो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ दैट बॉडी के। तो जो बॉडी का वेट होगा उतना इक्वल फोर्स हमको निकालना पड़ेगा। तो W इज इक्वल टू mg करो, g की वैल्यू नहीं दी है तो 9.8 ले लो, आपको याद रखना है, ठीक है। 5 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा 49 न्यूटन। इतना ही फोर्स आपको वहाँ पे लगाना है, तो 5 इंटू 9.8 मतलब 49 न्यूटन। तो आपके द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स कितना हो जाएगा 49 न्यूटन। एंड व्हाट असम्पशन डिड यू मेक, वी टुक g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इस एक्सरसाइज में है 20 क्वेश्चंस, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। टिल देन, थैंक you everyone for joining. Comment if you have any query and suggestion. If you like it, hit the like button, and if you want to support me, share the video with others also. Thank you. Have a nice day.